Hi Virat, can you talk about that Shaheen Afridi spell? And you survived that, but in the end, probably that kept India's run short on the total. Yeah, he did bowl really well with the new ball. I think he hit the right areas to pick up wickets. And in T20 cricket, you need good execution to pick up wickets with the new ball, and certainly he did that. So credit to him. He put our batsmen under pressure immediately with the new ball, and he ran in with intensity and showed that he's bowling in consistent areas. So as batsmen, you were forced to be a bit watchful, and yeah, that spell kind of put us on the back foot immediately, and from there on to get those extra 20-25 runs in the end seemed pretty difficult when you lose 3 wickets for 20 runs. Hi Virat, my name is Sayyid Haider. I'm from Star News, Pakistan. My question regarding the selection of the team, many people, they were talking about the selection that Ishan Kishan, he has played very well in the warm-up matches. So do you think that it's a mistake, Ishan Kishan, if he could play and then he can do better than Rohit Sharma? Next question. It's a very brave question. What do you think, sir? What do you I'm think the asking you, team? sir. No, I'm at least asking you, sir. I played the team that I thought was the best. What is your opinion? No, I'm just asking you. Will you drop I'm Rohit not, Sharma I'm not from- going to comment to you. From T20 internationals? Will you drop Rohit Sharma? No, You know what he did in the Next last question, game that we please. played? Yeah? Unbelievable. So if you want controversy, please tell me before so I can answer accordingly. Hi Virat, I'm Sabira Pasha. I wanted to ask you, was India a bit overconfident against Pakistan? Because obviously the track record tells that India has been winning across the ICC events. So was it like India was not more concentrated on the Pakistan match and they were concentrating on the other matches, those were coming up? You know, it's amazing what realities and what ideas people have on the outside. I just wish they could put on our cricket kit and actually walk into the field and understand what pressure is. You don't go out there to take anything lightly, especially a team like Pakistan who on their day can beat anyone in the world. This is a game that has to be respected, and we are a team that definitely respects the game, and we do not think that winning one game is the end of the world, and no other team should think that. This is a very big game. Cricket is beyond and above anyone else, any individual, and we definitely respect the game. We never take any opposition lightly. Neither do we differentiate between oppositions. That's how we play our cricket. On the day, if we haven't played good, we accept it, and we give credit to the opposition as well. We don't create any other scenarios other than knowing what went wrong and trying to correct that and move forward in a positive manner. Hello Virat, this is Jamil Hassan from Star Asia News, Pakistan. Did Pakistan outclass India in bowling unit or in batting? If in batting, did you expect that Pakistan will chase in by 10 wickets? Did you ever expect? They definitely outplayed us. There is no doubt about that. You don't win by 10 wickets if you don't outplay the opposition. We did not even get any chances. I mean, they were very professional, and look, you definitely have to give them credit. We tried our best. We tried to create enough pressure on them, but they had the answers, and there is no shame in accepting that a team played better than you. And as I said, when you step onto the field as 11 players from either side, you have an equal opportunity to win the game, and there's no guarantees that you're going to go out there and win every match. But having said that, you also don't go out there being casual, right? So we tried our best. We made a decent total out of our situation, we thought, and we thought we could put them under pressure, but they did not let us come into the game at any stage, and they definitely deserve the credit for finishing off the game very strongly and not allowing us to put any pressure on them through the innings. Hi Virat, Amol from the Hindu. Can you just talk about the change in conditions as the game progressed? Was it too lopsided for batters in the latter half, and perhaps too early? But can we have some sort of an update on Hardik's latest? Again, yes, it's a few things. I wouldn't say that it became very, very difficult, but if the pitch becomes little better to bat on and you get off to a start, then you start feeling more confident about the chase. And that's what happened, and the more dew came in towards the second half of the Pakistan innings, 10 overs onwards, and they were able to rotate strike. We could not even get dot balls in because the pitch was obviously providing a bit more pace for the batsman to work with.
The slower balls were not holding up as much. So these small little factors, as I said, they make a massive difference. And as a team, you need to understand what was the reality of the situation out there in the middle. And that's where those 20-25 extra runs would have been good. But brilliant bowling in the first 6 did not allow us to get those extra runs. So we know exactly how the game went and where it went wrong. And we have absolute clarity of that. And that's a good thing to know, that where you went wrong as a team, so that you can work on it and try and correct it and move forward, because we still have a lot of matches in this tournament. And if we stick to the processes we follow, we definitely feel like we can overcome these mistakes. But yes, toss definitely is going to be a factor in this tournament, especially if the dew keeps creeping in the later half of the game. You need those extra runs in the first half then. Captain, we shall take 2 questions from Zoom. Yeah, sure. Arani, Basu and Vishesh. Yep. Virat, there's a long gap before you play the next game. How do you see this long gap when you're playing a high-octane tournament like this, and then you played a match like this, Pakistan, which is very emotionally charged, and then after this defeat, that there will be players who would be eager to get onto the field. So how do you see this gap? And given the fact that you people have been on the road for so many months also, you have spoken about the scheduling as well. So how do you see this gap, and how do you want to work during this time? I think it works really well for us from all point of views. Knowing that we have played a full-fledged season already, we played the IPL, which is very high octane by itself in testing conditions here in the UAE, and then we come into the World Cup. So for us, these big breaks are definitely something that's going to help us as a team to be in the prime physical condition that we need to be to play this high intensity tournament. T20 World Cup is always a high intensity tournament, and it will help us again to regroup as a team, to get to the practice sessions eager to execute the things that we want to, prepare in a very confident manner, and then arrive on the day again to make sure that this time we execute our plans. And we have enough confidence in our ability that with this preparation time, we'll come out once again being in a positive frame of mind. So for us as a team, personally, I can say it's a good thing that's happening. We'll have time to reflect and to prepare again. Hi Virat, I just wanted to ask that this was the first time that the Indian cricket team took a knee before a cricket game. So I just wanted to know, when did you decide that you guys will be taking the knee, and what? That was communicated to us by the management. The Pakistan team agreed to pay their tribute towards the same cause, and then we accepted our side of things as well. So yeah, that's how it was decided. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हर एक प्लेयर की अपनी माइंड सेट होती है। आज मेरा पहला मैच, इंडिया के ख़िलाफ़ पहला मैच, वर्ल्ड कप का पहला मैच, कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, मगर वो लाइफ का हिस्सा है, होता रहता है। कुछ चीज़ें सीक्रेट होती है, वो बताई नहीं जाती। मगर अगर हम पूरी टीम, पाकिस्तान टीम की बात करें, अगर आप पूरा मैच उठा के देख ले, सम टाइम ये प्रेशर वाला मैच होता है। वर्ल्ड कप का पहले मैच ऑलरेडी जो भी मैच होगा प्रेशर का मैच होगा, और बेसिकली जिस तरह ये मैच और हाइप मिली हुई है, अलग प्रेशर था। मगर आप हमारी पूरी पाकिस्तान टीम के प्लेयरों की अगर एफर्ट देख ले, क्योंकि यहाँ से अगर मैं सिर्फ इतना सा क्लू दे दूँ, अगर एक टाइम पे हमारा एक बॉल गया मिड विकेट पे, उस टाइम 5 प्लेयर उस बॉल के करीब थे। तो ये हमारे वो प्लेयरों की वो जेलनेस थी, वो एजिलिटी थी, वो एनर्जी थी, जिसकी वजह से हमारी रिजल्ट हमारे बहुत करीब थे अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल हमारी बहुत सारी चीज़ें करवा दिए सारे ओवर्स, क्योंकि उस वक्त शाहीन को विकेट्स मिल रही थी, या शाहीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो ऐसी क्या बात हुई भी थी कि वो जो फील्डलेस अप्रोच बार बार बात करते हैं, आज एक्चुअली दिखी फील्ड पे? देखिए जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि माशाल्लाह अभी है पाकिस्तान से जीते हम सारे, और पूरे पाकिस्तान कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए जी, बेसिकली मेरे से पहले अगर यहाँ पे कुछ और प्लेयर होते तो कुछ और जवाब देते, क्योंकि मेरा फर्स्ट मैच था अगेंस्ट इंडिया और फर्स्ट मैच था वर्ल्ड कप में। मेरे लिए तो अगर पर्सनल में बात करूँ तो कुछ खास ऐसा मतलब डिफरेंट नई चीज़ और मैचों मैंने नहीं रखा इस चीज़ को, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर हो, इतनी चीज़ों को मुझे नहीं पता क्या सवाल हो रहे, क्या जवाब हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या बात है, क्या नहीं, मुझे तो नहीं पता। मगर बहरहाल जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, एक चीज़ को जब मैं बेसिकली मैं देखता था मैचेस वर्ल्ड कप से बाहर कि इंडिया पाकिस्तान की मैचेस होता था, तो जो चीज़ें मैं उस टाइम नोट करता था कि यार हमारी टीम शायद यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक, उस टाइम शायद मैं गलत ही हो सकता था, मगर मैं उस टाइम जब नोट करता था तो अभी कोशिश की उस चीज़ को अप्लाई करने की आज।
जिसकी वजह से मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली है। और अगर आप लास्ट में देख लें, मैं और शुएब भाई भी इकट्ठे हो गए थे लास्ट ओवर पे, तो उसने भी वहाँ पे एक बात की है कि यार जो मेरे अंदर थी शुएब भाई ने भी वो बात की। अब मगर वो बात हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसको सीक्रेट रहे, क्योंकि बता नहीं सकते, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप सर पे पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकते। मगर इससे अगर आप हमारी और चीज़ें देख लें, जैसे एनर्जी की बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ना कि ग्राउंड में और आउट द फील्ड, हम होटल में भी ऐसे हमारे सारे लड़के बहुत प्यार वाले, मोहब्बत वाले, बहुत सारी चीज़ें। और अगर पूरी टीम की चीज़ें देख ली जाए, ओपन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नए बॉल स्ट्राइकर शहनशाह, स्पिनर हमारे पास है, डेथ बॉलर्स है, लेफ्ट आर्म है, ऑफ स्पिनर है, ओपन हिटर्स सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने पूरे किए हुए। मगर वो जर्नलिस्ट की देर के अल्लाह पाक ने इस दफ़ा पूरी कर दी, इसकी वजह से रिजल्ट बहुत ईजी आ गए। और जहाँ तक आपने बात की शहनशाह से पहली दफ़ा 3 ओवर कराने, तो देखिए जी, अगर हम बहुत सारी चीज़ें देख ले, T20 क्रिकेट में कहा जाता है कि हिटर चाहिए, हमें पावर हिटर चाहिए, ठीक है जी। मगर आप क्रिकेट देखें उठा यहाँ के, अगर दुबई में देख लें तो पावर प्ले 30 और 37 और 35 पे ख़त्म हो रहे, 3-3 4-4 आउट हो रहे हैं। तो एकदम आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहनशाह, अगर आप भी आजकल आप ये तो सामने बैठे इसलिए मैं उसको ला भी नहीं रहा था, मैंने कहा कि दूर रहे, क्योंकि शहनशाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरे ख्याल से मेरे लिए पर्सनली पाकिस्तान वर्ल्ड के जो टॉप बॉलर मैं उसके अब गिन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह अल्लाह इसको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, तो वो मैं खुद से पर्सनली कहा हुआ है, क्योंकि एक डिमांड थी पिच की, और जिस चीज़ की डिमांड की थी कप्तान ने इससे नहीं, उसने करके दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी रिजवान, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। शाहीन आपको भी। हमें पिछले 10 सालों में ओपनिंग पेयर का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबर और आपने जब से ओपनिंग स्टार्ट किया वो मसला हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो किस तरह आप लोगों की कोऑर्डिनेशन चलती रही और क्या डिस्कस करते रहे जब ग्राउंड में आए हो? फिर फास्ट बॉलर्स के लिए क्या कहेंगे? बहुत आउटस्टैंडिंग रहे शाहीन भी और हारिस रऊफ, जो कि वार्म अप मैचेस में बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ शाहीन पे भी और हारिस ने भी, लेकिन इन दोनों ने उसको गलत साबित किया। यार क्रिटिसिज्म तुम्हारे पे भी हो रहा है कि वो ओपन क्या कर रही है। लेकिन ये ऐसा है कि अगर हम इन चीज़ों को देख ले, हमारे ओपनर्स में पहले आपसे कह दिया है कि अगर हम वेस्ट इंडीज़ की टीम को उठा के देख ले, पावर दुनिया के मशहूर सबसे फेमस पावर हिटर्स है। मगर मेरे ख्याल से मेरे लिए पर्सनली क्रिकेट पिच को कंडीशन को रीड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। दुबई की डिमांड 230-250 रन नहीं है T20 में, दुबई की डिमांड 120 है। जहाँ पे 200 होगा अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने हमें वहाँ पे 200 भी करा दिया हुआ है, मैं और बाबर भी खेलते हुए। ये हमारे मेरे ख्याल से तीसरा हुआ 150 का पार्टनरशिप फिर भी है। तो ये चीज़ें देखिए, अगर अभी भी मैं तो मेरे ख्याल से अभी भी शायद लोग यही कह रहे हैं कि हमारे पास ओपन, जैसे आप लास्ट टाइम मेरे पास कॉन्फ्रेंस था, उसने कहा अगर आपको कुर्बानी देना पड़े तो आप पीछे चले जाए। तो वो अभी ऐसे सवाल अब इनको आप लोग ही समझा सकते हैं, और हम तो सिर्फ आप लोगों को क्या कहते हैं जवाब दे सकते हैं। मगर मेरे बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि प्रेशर बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर है, जो प्रेशर को हैंडल करता है, जो कंडीशन रीड करता है, उस तरह खेलने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से ये मेन पॉइंट है। अच्छा रिजवान, आपने न्यूजीलैंड के दौरे से ओपनिंग शुरू की T20 में और कप्तान थे पहले मैच में, उसके बाद से आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, आपने मैंने सवाल पूछा था उस दौरे में भी, आपने कहा था मैं और बाबर आजम जब जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, हम दोनों फैसला करके जाते हैं कि अगर एक जल्दी आउट हुआ तो दूसरा आखिरी ओवर तक जाएगा, इनिंग को सेव करे। आज ऐसा क्या कहा था कि ना एक आउट हुआ, दोनों खेलते भी रहे और पूरा स्कोर भी कर लिया और मैच भी खत्म करके आ गए? देखिए जी, अब सम टाइम लक साथ होती है। अब अल्लाह पाक जो देखिए, पर्सनली बिलीव इस चीज़ पे करता हूँ कि यार निज़ाम चलाने वाला अल्लाह जल्ल जलालू है, और हर किस्म के रिजल्ट तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, क्योंकि टॉस हमारे हाथ में नहीं है, वेदर हमारे हाथ में नहीं है, और रिजल्ट भी हमारे हाथ में नहीं है। मगर हमारे एज ए टीम, हमारे लड़कों की एफर्ट, हमारी मेहनत, ये हमसे इतनी हो कि दूसरी टीम से ज़्यादा हो, तो अल्लाह पाक ज़रूर हमें जो बेहतरीन इंसाफ कर रहे हो अल्लाह जल्ल जलालू है, तो हमें ज़रूर वो जो है रिजल्ट देंगे। बहरहाल इसके जो आपने वहाँ से कहा है कि न्यूजीलैंड से पीछे नहीं, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से आप देख ले तो वही से मुझे ओपन मिली है, जो पूरा पाकिस्तान कहता है कि रिजवान को ओपन सूट करती है। तो वहाँ से मिर्ज़ा ने मुझे ओपन दी, उसकी वजह से फिर अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ परफॉर्म करवाया, और फिर इससे पहले थोड़ा पीछे से था, उसको जो पास को छोड़ देते। तो मगर बाबर भाई की जहाँ पे हमें और वो कोशिश करते हैं, अभी भी यहाँ पे भी ऐसी बात हुई थी कि रिजी हम दोनों जाएंगे। अगर आप एक ओवर आके देख ले जिसमें चक्रवर्ती को 2 छक्के पड़े थे, उसमें हमने ये डिसाइड किया था उस टाइम कि आप जाएंगे दोनों इस ओवर में रन करने के लिए। जहाँ पे गया तो दूसरा लंबा जाएगा, मगर वहाँ पे हमें अल्लाह पाक ने रन दे दिए, जहाँ वहाँ से निकले और बोर्ड स्कोर पे अच्छा मोमेंटम में आ गए हम सारे, जिसकी वजह से इजी हो गया आगे के लिए खेलना। मेहरबानी, मुबारक शाह। Okay, for those on Zoom, Mohammed Rizwan is just going to leave us now, so we're going to be left with Shaheen Afridi, who will take the rest of the questions. There are more questions in the floor here, so I will just hand over. 1 second.
अस्सलाम वालेकुम जमील हसन मशरक टीवी ना तासु तरटूल न पहले मुबारक वाइम द्वैम सवाल जमा दादे तासु ना छेद मोहम्मद आमिर पर गैर मौजूदगी के पतासु बांधे सुमरा प्रेशर हो पर सोशल मीडिया और पर मेन स्ट्रीम मीडिया बांधे टोल न तवक्कुआत ज़्यादा और तासु ची कम इन स्विंगर्स पर पहले और द्वैम आवर क्यों इश्तल नो दालक एक्सप्लेन कई पश्तो उर्दू में दो कि पश्तो में दो वालेकुम आपको दूसरे में समझा दूंगा वालेकुम सलाम और डेरा मेहरबानी बिल्कुल अवल खोटलना द अल्लाह पाक ढेर शुक्र दे आई थिंक द पाकिस्तान द पारा दिल द फ़ख्र खबर अदा ची लगा मतलब इंडिया ना मैच हो गटलो वर्ल्ड कप की टीम मैच में हो गटलो बिल्कुल आमिर पाकिस्तान द पारा ढेर खब परफॉर्मेंसेस करी थी बस आई थिंक मां उंदा कोशिश हो चे कल ना जन्नी बॉल मंद रागलन जमादा कोशिश हो टीम द पारा विकेट वालम पहला ओवर के सो अल्लाह पाक पागे के कामयाब आकड़म सो अल्लाह पाक शुक्र दे पदे में शाहीन पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक आपको और जब आप लोग ग्राउंड में उतर रहे थे आपको पता है कि हमने पहले फील्ड करना है बाबर आजम ने आपको पहले बॉल दिया पहले ओवर में तो उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था नहीं वो तो मुझे हर रोज़ बॉल देते हैं लेकिन इतने बड़े मैच में वर्ल्ड कप की ओपनिंग की नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल ये टीम प्लान था कि पहला ओवर मैं करूँगा फिर इमाद वसीम करेंगे होता है प्लान चेंज भी होता है लेकिन यही था बस मेरी यही कोशिश थी कि अर्ली ऑन आके ब्रेक थ्रू टीम को जो टीम की रिक्वायर्ड होती है मुझसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ कोशिश की बाकी अल्लाह पाक ने रिजल्ट दी कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल आज पहले इंडिया की पारी में भी हमने देखा कि विराट ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे काफ़ी फोकस किया था फिर जब बाबर और रिजवान ने बैटिंग की तब फिर से काफ़ी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स रही तो इस टूर्नामेंट में गिवन की पिचेस थोड़े स्लोअर साइड पे रह रहे हैं आउटफील्ड बड़ा है तो आपको लगता है कि ये वंस और टूज रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा बिल्कुल देखिए विकटें जो है बहुत अच्छी विकटें मतलब थोड़ा सा उस पर स्पिन और फास्ट बॉल को हेल्प इसलिए मिल रही है कि बॉल ग्रिप हो रहा है तो आई थिंक बड़े हेड बहुत मुश्किल है कि आखिरी ओवर में लगे क्योंकि बॉल ग्रिप हो रहा है और मुश्किल है बैट्समैन को उसको बड़ी हेड मारना तो आई थिंक 1 और 2 से ना वो उसमें रोटेशन करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा आई थिंक उसी में जैसे कोहली ने रन्स किए फिर रिजी और बाबर जैसे के लिए आई थिंक क्रेडिट उनको ज़्यादा ज़्यादा है उन्होंने इतना अच्छा मैच बनाया और फिनिश किया शाहीन भाई आप रोहित का डिसमिसल आप थोड़ा बता सकोगे कि मतलब वो पहले से प्लान था या वो आप उसी समय आपने डिसाइड किया कि फुल बॉल ट्राई करेंगे कैसा था बिल्कुल देखिए मेरी स्ट्रेंथ भी है नए बॉल से यॉर्कर मारना और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ब्रेक थ्रू टीम को आई थिंक प्लान किया था बिल्कुल प्लान के साथ गए थे और उसमें सक्सेस मिला मेरी यही कोशिश थी कि हाफ भी हो जाए मतलब थोड़ा सा अगर भी मुझे स्विंग मिला या मेरा बॉल डिप हो गया तो आउट हो जाएगा तो उसमें मैंने सिर्फ कोशिश की बाकी अल्लाह पाक So from virtual session, can we ask Anuj and then Rohit, the 2 questions, please? शाहीन जैसे अभी आपने बताया रोहित की विकेट मिली और आपने प्लान कर रखा था पर आपने क्या ये भी प्लान कर रखा था कि इंडिया वालों को बैटिंग ही नहीं करने दोगे आप फर्स्ट 6 ओवर्स में नहीं प्लान यही था कि आई थिंक पहली बार मैंने भी पावर प्ले में 3 ओवर किए तो मेरी यही कोशिश थी मेरे बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा था तो मेरा यही था कि मैं टीम को ब्रेक थ्रू दूं क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट थी और वो कंडीशन ऐसी बन गई थी कि मेरा बॉल थोड़ा सा हिल रहा था तो बस उसी में मैंने सिर्फ कोशिश की बाकी रिजल्ट अच्छे मिले शाहीन भाई कांग्रेचुलेशंस आपको आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली उसके बाद जब क्रीज पर थे तो उनके अगेंस्ट भी कोई प्लान था आपका क्योंकि वो उस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नहीं दिखा जिस तरीके से हमने देखा कि रोहित को जिस तरीके से डिसमिस किया या केएल राहुल को आपने जिस तरीके से आउट किया विराट के अगेंस्ट भी प्लान था थैंक यू पहले तो बिल्कुल प्लान किया था देखिए विराट कोहली नो डाउट नंबर 1 प्लेयर है और आई थिंक बाबर और विराट में कोई वो फ़र्क नहीं है दोनों सेम खेलते हैं जैसे मैं बाबर को बॉलिंग करता हूँ नेट्स में तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं विराट कोहली को भी वैसे बॉलिंग करूँ प्लान था लेकिन वो वैसे जब मैं तीसरे ओवर के लिए आया दूसरे ओवर में वैसे मुझे उसके बाद स्विंग नहीं मिला या सीम तो मेरी यही कोशिश थी कि उसको कंटिन्यू करूँ सिर्फ लेंथ पे हिट करूँ और आखिर में आके थोड़ा स्लो कटर करूँ तो उसमें फिर प्लान आखिर में थोड़ा सा अच्छा रहा उसके ख़िलाफ़ क्योंकि वो रूम बना रहा था मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था
Thank you. Assalamu alaikum, Shaheen. This is Salman Khan from Pune. Dear Madana, Sorry, Salman, can I just cut you short there? Sorry, we're just on the last couple of questions, just a couple of questions in English for you, Shaheen. Congratulations, brilliant performance tonight, 10-wicket win. Was that in some ways the complete performance by Pakistan? Thank you. I think, to be honest, really good feeling for win against India in World Cup, and special feeling for Pakistani. First of all, congratulations for Pakistan. They all sitting and they all pray for us. So I think we planned and just we execute and. And it was a brilliant performance from yourself. What aspect of the team performance, though, pleased you most? Yeah, just trying to bowl right areas. And the way Rizzi and Babar finished the game and the way they're playing, I think credit goes to these two. Like one man army showing they both so it's good. It's good for Pakistan. So start good and our first game, and we're looking forward for more games.